Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing today some basic concept of chemistry. This is lecture number 2. I hope you have already watched part 1 and this is lecture number 2. So in this lecture we will discuss about the composition of matter, that is different type of composition of matter, and also the category and classification of matter as well. So let me discuss about the matter. What is matter? So what is matter? Matter क्या होता है? Anything which occupy a space and having mass called matter. A simple psychologic है और इस डेफिनेशन के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी इस दुनिया में है जो जगह को घेरता है, ऑक्युपाई स्पेस, और जिसमें मास है, उसको हम मैटर कह सकते हैं। इसको मैटर को किसी एक सेंस ऑफ ऑर्गन, जो 5 सेंस ऑफ ऑर्गन है, सेंस कौन कौन से 5 सेंस ऑफ ऑर्गन है? साइट, टच, हियरिंग, राइट, ये 3 हो गए। साइट मतलब देखना, हियरिंग मतलब सुनना, टच मतलब छूना, और फेल्ट मतलब महसूस करना, एंड टेस्ट करना मतलब उसे चखना। तो ये 5 में से कोई भी तरीके से उसे महसूस किया जा सके तो उसको हम कहते हैं क्या? कि मैटर है। तो सबसे पहले मैटर के बारे में डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हाट इज मैटर। फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज मैटर। सो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग, so I can write definition about the matter, that anything which occupy a space and having some mass, and it felt by one or more than one sense of organ, one or more than one sense. What is the sense? Sight, smell, touch, taste and hearing। इन पांचों में से किसी से भी which can be felt by one or more than one sense, किसी से भी महसूस किया जा सके, उसे हम कहते हैं मैटर। So matter is anything which occupy a space and having mass and it felt by one or more than one sense is called matter. Anything so is called matter, फेल्ट मीन्स इसका परजेंस, छूने से, देखने से, या टेस्ट करने से, टच करने से, स्मेल करने से, किसी न किसी की वजह से उसका परजेंस हमें पता चले तो हम उसे कहते हैं मैटर। अब मैटर कितने तरह के होते हैं? तो मैटर को बेसिकली फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, बट फिलहाल हम ये समझते हैं कि मैटर जो होता है वो 3 तरह के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये है फिजिकल क्लासिफिकेशन। आप अपने आसपास देख सकते हैं, जैसे वाटर है तो ये लिक्विड स्टेज में है, बुक है वो क्या है? सॉलिड है, और कुछ और हवा है, ये क्या है? गैस है। ये भी जगह घेरता है, ये भी स्पेस को ऑक्युपाई करता है। तो इस तरीके से मैटर का क्लासिफिकेशन हो सकता है। ऑल दीज थिंग्स अराउंड अस, फॉर एग्जांपल here matters, example of matters are like book, like pen, like pencil, water, air, and etc. This is table, chair. These all are made of matters, all are etc. are made of matters. ये सारे मैटर से बने हुए हैं, राइट? तो ये सब कुछ मैटर से बने हुए हैं। मैटर
इन सब से बना, मैटर से ये सारी चीजें बने हुए हैं, इसलिए इन सबको हम कह सकते हैं कि ये मैटर इनमें कहीं ना कहीं है, और कहीं लिक्विड फॉर्म में है, कहीं सॉलिड फॉर्म में है, और कहीं गैसियस फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो मैटर के क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। Classification, there are two type of classification. One is called physical classification and another is chemical classification. In physical classification we can say matter are of three type: solid, liquid and gas. In physical classification we can say matters are of three type, that is called solid, liquid and gas. And in chemical classification we can classify matters are two type. One is called mixture and another is called pure substance. Mixture are of two type. It can be categorized two type. Mixture are two type. One is homogeneous mixture, and the second is heterogeneous mixture. Pure substance can be also categorized in two ways. One is called element and another is called compound. Element and compound. So further it can be classified, this compound can be classified in two ways. One is called inorganic compound and organic compound. Inorganic compound and organic compound. राइट, तो इस तरीके से अलग अलग क्लासिफिकेशन होगा। अब हम बारी बारी से इन सब के बारे में पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि सॉलिड क्या है। सॉलिड के बारे में जो हम कहें कि सॉलिड वो होता है जिसकी क्या होती है, फिक्स्ड शेप एंड साइज होती है। फिक्स्ड शेप, साइज, वॉल्यूम, ये सब कुछ फिक्स्ड होती है, ये है सॉलिड। अब लिक्विड क्या होता है, इसकी होती है फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड साइज, बट नॉट फिक्स्ड शेप कोई फिक्स्ड नहीं होती। जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन के साइज का, आकार का हो जाता है। इसी तरह से अब हम बात करें कि ये जो गैस है इसका क्या होता है, नीदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप भी फिक्स नहीं होता और इसकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती। जहां पे रखा जाता है उस पूरी जगह को घेर लेता है, पूरी जगह को ऑक्युपाई कर लेता है। जैसे इस रूम में अगर हम एक परफ्यूम स्प्रे करें, रूम फ्रेशनर स्प्रे करें तो पूरे रूम में फैल जाएगा। इसकी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती, कोई फिक्स शेप नहीं होता, तो इस तरह को हम गैस कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सॉलिड जो होता है, सॉलिड में बेसिकली होता क्या है, सॉलिड में कंपाउंड जो होता है वो बड़ा कंपैक्ट होता है। ये जो सॉलिड का होता है इसके बीच में ये जो सॉलिड है इस तरह के, इसमें एक के ऊपर एक ये कंपाउंड्स इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, ये है सॉलिड। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या हो सकता है सॉलिड, लाइक इसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता, इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता, ये बहुत ही कंपैक्ट होता है और कंपैक्ट होने की वजह से इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता। इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसलिए सॉलिड होता है। और इसीलिए चूंकि ये पूरी एक दूसरे को इंटैक्ट और कंपैक्ट रूप से एक दूसरे को जकड़े हुए रहता है, बांधे हुए रहता है, इसलिए इसका जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है और इसकी साइज भी फिक्स्ड होती है। लेकिन लिक्विड के बारे में क्या है कि इसमें इतना कंपैक्ट नहीं होता, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में
थोड़ी बहुत स्पेस होती है, ये कह सकते हैं बहुत मामूली सी, नेग्लिजिबल, इतना ज्यादा स्पेस तो नहीं होता, बट इसकी बाइंडिंग जो फोर्स होती है वो थोड़ी कमजोर होती है, वीक होती है। इसलिए ये जो है ये क्या कर सकता है, इट कैन फ्लो, इट कैन मूव, ये मूव कर सकता है। आप यहाँ पे पानी का कुछ रखें टेबल पे, क्या होगा, थोड़ा सा मूव कर जाएगा, यहाँ से वहां फैल जाएगा। ऑयल रखें वो भी फैल जाएगा, लेकिन ये जो है सॉलिड वो फैलेगा नहीं। अगर इसे हिप किया जा सकता है, कट किया जा सकता है, इसको हिप भी नहीं किया जा सकता, यानी कट नहीं किया जा सकता। हिप करने पे ये क्या करेगा, ये फ्लो करता है, मूवेबल होता है। गैस में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो बहुत वीक होती है, ना के बराबर, और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी ज्यादा होता है। तो बारी बारी से इन सब के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड, सॉलिड के बारे में क्या लिखें, इट इज ए कंपैक्ट, रिजिड, रिजिड शेप, रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर होता है, कंपैक्ट होता है। नो इंटरमोलिकुलर स्पेस, मोलिकुलर स्पेस, ये रिजिड होता है, कंपैक्ट होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड शेप होती है, ठीक है, फिक्स्ड शेप एंड साइज होता है। और इसके अंदर जो होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, मोलिकुलर फोर्स जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड का, इसलिए ये सॉलिड होता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह की होती है, लाइक ये मैंने क्या बनाया था पीछे, राइट ना, स्ट्रक्चर होती है इस तरह की होती है। ये एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या क्या लिख सकते हैं सॉलिड के रूप में, एग्जाम्पल के तौर पे ब्रिक, वुड, यू नो, वुड, स्टील, etc. These are all solid. Liquid, the second thing is liquid. So liquid is what, ये है liquid. लिक्विड, इसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं वो थोड़े से कम रिजिड होते हैं, कम कंपैक्ट होते हैं, लेस कंपैक्ट होते हैं, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें स्पेस इसमें भी नहीं होता है। लेस कंपैक्ट, कंपैक्ट एज कंपेयर टू सॉलिड, राइट ना। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड, नो फिक्स्ड शेप, सॉरी, नो फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन वॉल्यूम जो होती है वो फिक्स्ड होती है, 1 लीटर ही होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम, राइट ना, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और इसमें इंटरमोलिकुलर, लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, स्पेस, और इसमें लेस फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड। लेस का मतलब एज कंपेयर टू सॉलिड, लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, ये मूवेबल होता है, मूवेबल, मूवेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, ऑयल, एटसेट्रा, राइट। तो ये दो हो गए सॉलिड और लिक्विड। तीसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है, वो होता है गैस। तो गैस के बारे में, गैस में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, है ना, और ये जो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं इसलिए इसमें हाई स्पीड में मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के लेस बाइंडिंग फोर्स होती है, इसलिए मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है, ठीक है। एंड पार्टिकल्स आर इन रैंडम मोशन, वो तो सब में होती है बट इसमें कुछ ज्यादा होता है, पार्टिकल्स आर इन रैंडम मोशन, रैंडम मोशन, वो फास्ट होते हैं, फास्ट रैंडम मोशन, फास्ट रैंडम मोशन। नो फिक्स शेप,
फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड शेप, ये होता है। और नो इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी वीक, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी वीक, वीक, नहीं के बराबर। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एयर, राइट ना, ऑक्सीजन, ये सब गैस है, परफ्यूम्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये गैस है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सब्सटेंस में जो फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर सब्सटेंस को तीन अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है, और ये तीन अलग अलग कैटेगरी में उनकी सब्सटेंस की नेचर क्या क्या होगा और क्यों होगा। हम इसमें चूंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत वीक होता है, इसलिए तेजी से एक दूसरी जगह पे जाकर के मिक्स हो जाते हैं। इसमें जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को एक दूसरे में मिक्स करने की होती है, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं मालूम, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूज कर जाता है, दूसरे में मिल जाता है, तो इसमें डिफ्यूजन होता रहता है। लिक्विड में जो होती है वो मिक्सिंग होती है, लिक्विड दूसरी चीज को मिक्स कर लेता है, बट बहुत सारी चीज को मिक्स नहीं भी कर पाता है। सॉलिड जो है वो मिक्स करता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं करता। एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के साथ बिल्कुल मिक्स नहीं करेगा, केमिकली कम मिक्स हो जाए, फिजिकली तो मिक्स नहीं होगा। आप ऐसा नहीं होगा कि आप स्टील में ले जा करके और आप कॉपर को मिक्स कर दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ब्रिक में आप ले जा करके वुड को मिक्स कर दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मिक्स नहीं हो सकते। लिक्विड लिक्विड में मिक्स हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन गैस जो है ये जैसे ही आप छोड़ा जाए, कहीं पे भी छोड़ा जाए एटमॉस्फेयर में, ये तुरंत ही डिफ्यूज हो जाता है। एक दूसरे में मिलने की प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन, राइट। दूसरा जो हमने दूसरा क्या था कि हमने केमिकल क्लासिफिकेशन किया था, और केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या था, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने बात किया था, और उसमें हमने बात किया था कि सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इसमें हमने दो बातें कही कि एक एलिमेंट होता है और एक होता है एलिमेंट, और दूसरा होता है मिक्सचर, कंपाउंड, सॉरी, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो अब इनके बारे में जरा बात कर ले। कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट होता है ये प्योर फॉर्म में होता है, it is made of only one type of atoms or molecules. Elements are a pure type of substance which is made of, elements are pure type of substance, pure substance which is made of, which is made of only one type of atoms or molecules, right. Compound are made of more than one type of, compounds are made of more than one type of atoms and molecules, or molecules, atoms or molecules, right now. So that is called what, compound. It is chemically combined, chemically combined together, combined together. So ये है हमारा क्या, कंपाउंड। अब जैसे एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स में हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स के फॉर्म में कौन कौन से हैं, सोडियम है, ये एलिमेंट्स है, ठीक है, सोडियम है, ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, क्लोरीन है, ये एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन है, ये एलिमेंट्स है, ठीक है, फास्फोरस है, ये एलिमेंट्स है, कैल्शियम है, ये एलिमेंट्स है, एटसेट्रा, ये सब एलिमेंट्स है। इसके एक तो एक तरफ का, एक टाइप का या तो एटम है या एक टाइप का इसमें मॉलिक्यूल है। आप सिल्वर को कह सकते हैं ये है एलिमेंट,
आप गोल्ड को कह सकते हैं, ये भी क्या है, एलिमेंट। बट कंपाउंड्स क्या होता है, इसमें एक से ज्यादा टाइप के चीज मिले होते हैं। जैसे H2O, ये कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम मिले हैं। CO2 ये क्या है, इसमें कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम मिला है। CO3 इसमें मोर देन 3 एलिमेंट्स मिले हुए हैं, इसमें कैल्शियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन के 3 एटम्स, कार्बन का 1 एटम, कैल्शियम का 1 एटम, इस तरीके से ये अलग अलग बने हुए हैं। C6H6O C6H12O6 ये है ग्लूकोज, ये भी बना हुआ है। इसमें क्या है, इसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो इस तरीके से ये क्या कहलाता है, कंपाउंड। ये केमिकली कंबाइंड हुए पड़े हैं, ये फिजिकल प्रोसेस नहीं है, तो इसमें भी मिले हुए होते हैं। अब आप सोच सकते हो कि मिक्सचर और इसमें क्या फर्क है। कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं कंबाइन इन फिक्स रेशियो, here elements, here molecules of different atoms, here atoms are combined in fixed ratio, are combined in fixed ratio, इनकी रेशियो जो होती है वो फिक्स्ड होती है और फिक्स रेशियो में ही कंबाइंड होता है। जबकि मिक्सचर की अगर हम बात करें तो मिक्सचर में क्या होता है कि ये फिक्स रेशियो में कंबाइंड नहीं होता। मिक्सचर एक जो होती है वो इस तरह की प्रोसेस होती है जो कि सिर्फ फिजिकल मेथड से हम मिला देते हैं। यहाँ पे बात करते हैं मिक्सचर की। 2 or more type of items, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर इज ए combination of, it is a combination of 2 or more type of item, 2 or more type of substance, ठीक है, which is mixed together by physical process, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज मिक्स्ड बाय फिजिकल प्रोसेस। जैसे एग्जांपल हम कहें कि एग्जांपल फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ sugar and water, physically you can mixture of milk and water, that is a physical process in which one can mix one with another. So ये है हमारा फिजिकल प्रोसेस से कंबाइन किया हुआ 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस, 2 or more than 2 substance which combine together, they are forming a mixture. So mixture are basically of 2 types. One is called homogeneous, another is called heterogeneous. Homogeneous and another is called heterogeneous. Homogeneous क्या है, इसमें क्या है कि सॉल्यूट, इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो सॉल्यूट होता है, the concentration of solute, the concentration of solute in solvent are same everywhere in the solution, right? तो ये होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। जैसे आप शुगर को पानी में बढ़िया से घुला दें तो जो ऊपर का लेयर पे जितना वो मीठा होगा, जितना स्वीटनेस होगी, उतना ही बटन में भी होगा पूरी तरह से अगर शुगर घुल गया है तो ये होमोजेनियस मिक्सचर मिला है, यानी कॉन्सेंट्रेशन जितना जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा। 2 चीजें इसमें वर्ड में डिस्कस किया हुआ है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। आपको पता है क्या होता है, सॉल्वेंट वो होता है जैसे शुगर और वाटर कहें तो शुगर जो है वो सॉल्यूट है जो घुल जाता है, और सॉल्वेंट है जिसमें घुलता है। तो सॉल्वेंट होता है द
solvent is the material in which solute is dissolved, that is called solvent. और solute होता है जो dissolve होता है, और दोनों को मिला के क्या कहते हैं, solution. तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा. तो इसमें हेट्रोजीनियस में क्या होता है, द कॉन्सेंट्रेशन, हेट्रोजीनियस में होता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, concentration of solute is not same everywhere, not same, is not same everywhere, everywhere means different at different place, you know. So that is called, for example, sand and water, sand and water, concentration at the bottom level will be more and concentration at the top level will be less. So sand and water like this is a called mixture, or even you can say grain, two type of different grains can mix together, mixture of two type of wheat and rice, mixture of wheat and rice together, that can be a mixture, you know, mixture of two different type of things which are not combined in fixed ratio. Mixture can be combined in any ratio, even it is homogeneous or it is heterogeneous, but their combination can have any ratio. It can be combined in any ratio. Mixture can be combined, mixture can be made by any combination, any ratio of combination, right? तो एनी रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होगा और इतना ही मिला होगा. अलग अलग तरीके का मिक्सचर हो सकता है. किसी का अगर कोई चाय में 1 चम्मच चीनी पीता है, कोई 2 चम्मच पीता है, कोई 4 चम्मच पीता है, डिपेंड करता है कि कौन कितना मीठा पीता है. ठीक है, तो पानी में किसी भी रेशियो में शुगर का जो है वो कंसंट्रेशन हो सकता है, वो किसी भी रेशियो में कंबाइन हो सकती है. लेकिन अगर मैं बहुत बात करूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन वाटर के लिए, तो हमेशा ही ये हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ कंबाइन करेंगे और उनकी रेशियो जो होगी 1:8 की होगी. इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता, इससे कम भी नहीं हो सकता. कम होगा तो कंबाइंड होंगे नहीं, ज्यादा होगा तो भी कंबाइंड उतनी ही का होगा. जैसे एक आदमी, आप खाना खाते हैं, आप सपोज कीजिए कि 4 पूड़ी खाते हैं, और आपके जब गए हैं कहीं बारात शादी और किसी भोज में, वहां बहुत सारा खाना रखा होता है, तो क्या आप 400 पूड़ी खा लेते हैं? नहीं ना, आपकी जितनी एबिलिटी है उतनी ही खाते हैं. उसी तरह से जब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होगा तब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन होगा 1:18 के रूप में ही होगा. एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, उसी प्रोपोर्शन के रूप में कंबाइंड होगा. ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है तो बहुत उनकी रेशियो कॉम्बिनेशन की कुछ अलग होगी, जबकि यहाँ पे अगर चीनी ज्यादा है तो लोग ज्यादा मीठा पी सकते हैं. ठीक है, तो मिक्सचर में कोई रेशियो का फिक्स नहीं होता, और कंपाउंड में केमिकली कंबाइंड होता है, उसमें रेशियो फिक्स होती है कॉम्बिनेशन की, इसमें रेशियो फिक्स नहीं होती. होमोजेनियस क्या है? होमोजेनियस का मतलब ये हुआ कि पूरी तरह से मिला हुआ, ताकि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो थ्रू आउट सेम रहे. जैसे वाटर और मिल्क का हमने कहा कि वाटर और मिल्क का कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो होमोजेनियस हो सकता है. शुगर और वाटर का वो भी होमोजेनियस हो सकता है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शुगर एंड वाटर, फॉर एग्जांपल sugar and water, right? Water, right? Or you can say milk and water, milk and water. This is a homogeneous type of mixing can be possible in this combination. So इस तरीके से मिक्सचर सब्सटेंस के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में हमने सीखा. अब कंपाउंड के बारे में क्या है कि हमने जैसे कहा कि केमिकली कंबाइंड होते हैं. इसमें भी 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, एक इनऑर्गेनिक और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो फर्दर एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड, elements further can be classified in 3 types. One is called metals, second is called non-metals, and third is called metalloids.
Third is called metalloids. Right? So what are these and what are the bases in which they can be classified? Metals, non-metals and metalloids, these are the three different type of elements. Metals, what are the characteristics of metals? Metals are usually solid. The characteristics I would like to write here, their characteristics are usually solid. Metals are except mercury, which is a liquid at room temperature, except mercury, which are liquid at room temperature. So usually solids, they are good conductor of heat and electricity. Right? Good conductor of heat and electricity. Has malleability, property of malleability and ductility. Malleability has property of malleability and ductility. Malleability क्या होता है और ductility क्या होता है? Malleability होती है कि substance को can be converted into thin sheets. So metal can be beaten and spread in thin sheets. So, and ductile is something in which wires can be drawn. The property of material in which wires can be drawn from it. So, high density and luster. Luster means what? Luster means shining. So, have good shining. Luster, that is good shining. Has property of luster, that is good shining. So these are the characteristics of metals. For example, some example of metals can be written here, and these are like gold, silver, you know, and you can say tin, gold, silver, tin, platinum, etc. Tin, etc. These are metals. Non-metals are what? What are non-metals? Non-metals are found in all three states. You know, chlorine, bromine, iodine are like this. Bromine is liquid. Chlorine is gas. You know, bromine is liquid, chlorine is gas, whereas phosphorus is solid. So it found in all three states. So found in all three states. Like bromine is liquid, oxygen, chlorine, right? Oxygen, chlorine, etc. are gases. Sulfur is solid. So these are some examples where we can say that they found in all these three states. These are poor conductor of heat and electricity, poor conductor of electricity except graphite. Except graphite. It is a good conductor of electricity, right? And they have no luster, right? No luster. Example I have given here.
this is chlorine, bromine, iodine, chlorine, bromine, iodine, oxygen, etc. These are all non-metals, so it has no malleability, no ductility, and it has less density, right now? No malleability, no ductility, less density. So non-metals are something which has this kind of property. Metalloids, it possesses both the type of property. It possesses both properties of metal and non-metal, metals and non-metals. Sorry, metals and non-metals. Metals and non-metals. For example, arsenic and antimony and bismuth. Antimony and bismuth, etc. These are metalloids. So these are the three different type of elements which exist in nature, and we can classify them. Further, compounds can be, as we had discussed, the compounds can have also two categories. So compounds is what? Compounds can be also classified in two ways. One is organic compound, another is inorganic compound. Route compounds. What is the difference between these two? So organic compounds are the compounds which contains carbons which combine with, or which contain with, you can write, which contain carbon with some other elements, which combine, it will be better word, which combine, compounds which combine, which form by combination of carbon, with some other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, and halogen. Halogen means chlorine, bromine, iodine, etc. Chlorine, bromine, iodine, ये सब जो होते हैं इनको हम कहते हैं हाइलोजन. तो इन सब की कॉम्बिनेशन से बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड. Inorganic compound are made of the compound which is made of by combination of which is made by combination of any two elements. These are called inorganic compounds. So organic compounds and inorganic compounds, ये जो दो टाइप के कंपाउंड है, इनके बारे में भी आप समझ गए कि क्या क्या होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन मस्ट है, इसमें कार्बन मस्ट नहीं है. ये कोई भी दो कंपाउंड हो सकते हैं, उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, राइट. जैसे NaCl, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट ना. लेकिन मीथेन CH4 ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट ना. सो इस तरीके का हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल CH4 ये है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है. यहाँ NaCl ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. CaO ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. कैल्शियम ऑक्साइड, है ना,
कैल्शियम ऑक्साइड, ये ठीक है, CaCO3 ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सब कंपाउंड इनऑर्गेनिक है। हेयर C2H2 ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइक दिस C6H12O6 ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरीके का एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं, इस तरीके का एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो मैटर है उसकी क्लासिफिकेशन हमने इसमें सीखा, और मैटर कितने तरह के होते हैं ये बात हमने सीख लिया कि मैटर में कंपाउंड्स जो होता है, और कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड वो होता है जो कि केमिकली कॉम्बिनेशन ऑफ which is made of by chemical combination of atoms of two or more elements, राइट। तो ये होता है कंपाउंड। आई थिंक आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा, और कितने तरह के मैटर होते हैं ये बात भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, उनकी क्या क्या क्लासिफिकेशन है, एलिमेंट की क्या है, कंपाउंड की क्या है। तो ये इस तरीके से पूरी की पूरी जो मैटर है वो क्लासिफाइड कर दिया गया है, और इसके बारे में डिटेल स्टडी 1 by 1 करके आने वाले समय में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसकी बहुत डिटेल स्टडी होगी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करने के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी हुई है। सो आई होप कि आप इन सब चीज़ों को धीरे धीरे सीख पाएंगे, और फ्यूचर में आपके पास एक सॉलिड नॉलेज डेवलप हो पाएगी। बट फिलहाल अभी के लेवल पे इतनी ही नॉलेज काफ़ी है। सो अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है, और उस क्लास में हम फिर इससे आगे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मज़े से रहिए, खूब आराम से पढ़िए, और जो भी आप दिक्कत हो उसे पूछिए अगली क्लास में, ठीक है। और हमारी चैनल को भी वॉच करते रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।